the online education systems that is happening in SVKM Trust and KSU University in particular. તો આપણે શું કરી રહ્યા છે એ મારે બહુ બ્રીફમાં કઈ કઈ વસ્તુ ઇનોવેશન અને ક્રિએટિવિટીમાં તમને અહીંયા જોવા મળશે એના વિશે અગર શોર્ટમાં તમને કહું તો KSU યુનિવર્સિટીએ ઇનોવેશન ઇન્ક્યુબેશનમાં ગુજરાતમાં સૌથી પહેલી વખત અને સૌથી શું કહેવાય પાયોનિયરિંગ રીતે એમને ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર સ્ટાર્ટ કરેલું 2017માં KSU યુનિવર્સિટી 2100 સ્ક્વેર ફીટ જગ્યામાં ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું. હવે ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટરને ઇનોવેશન એ બધી પ્રોસેસ શું છે એ બધામાં થોડું પ્રેક્ટિકલી તમને લઈ જાઉં. સો હાઉ ઇટ ઓલ સ્ટાર્ટેડ. તમે બધા હવે સ્ટાર્ટઅપનું નામ તમારા માટે નવું નથી. સ્ટાર્ટઅપ એટલે શું તો તમને બેઝિકલી તમારા બધા જોડે અત્યારે ઇન્ટરનેટ છે અવેલેબલ ને તમે સમજી શકો કે કોઈ પણ એક કંપની સ્ટાર્ટઅપ અને એક બિઝનેસ વચ્ચે શું ફરક હોય. તો અગર જનરલી પાસ્ટ બિઝનેસનો રેકોર્ડ જોવા જાઓ તો બિરલા જે આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ કહેવાય એ ભારતમાં આશરે 300 વર્ષ જૂનું છે. અને ફેસબુક કેટલા વર્ષ જૂનું છે? કોઈ કમેન્ટમાં કહી શકશે કયા વર્ષમાં ફેસબુક ફાઉન્ડ થયું હતું, એટલે કયા વર્ષમાં ફેસબુક ચાલુ થયું હતું? ભલે 1-2 દિવસથી થોડું આપણને હેરાન કરે છે, પર ફેસબુક કયા વર્ષમાં ચાલુ થયું હતું? આવું કોઈને વર્ષ યાદ છે? જૈમીને લખ્યું છે 2003. જય લખે છે 2004. ઓકે, તો 2004 is now the new normal answer. 2003 પછી 2004 and that's the right answer. કે 2004ના ફેબ માર્ચની વચ્ચે ફેસબુક ફોર્મ થયું હતું, રજીસ્ટર થયું હતું સપ્ટેમ્બરની આજુબાજુ. સો આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ એટલે આજે હું તમને ડેટા આપું છું એ 2015-16માં જ્યારે મેં આ વિષય પર રિસર્ચ કર્યો હતો એ વખતે આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ જે બહુ વર્ષોથી પેઢીઓથી ચાલતું હતું એનું એવરેજ એનું જે એન્યુઅલ ટર્નઓવર કહેવાય, રેવન્યુ કહેવાય, એટલે આ કોમર્સના બધા ટર્મ્સ છે પણ તમે ધીરે ધીરે એનાથી ફેમિલિયર થઈ જશો. એ વખતે $19 બિલિયન હતું. હું તમને 2015ના સ્ટેટિસ્ટિક્સ કહું છું. અને ફેસબુકનું જે માત્ર એ વખતે 2015માં 12 વર્ષ જૂની કંપની હતી એનું રેવન્યુ મોડલ એ વખતે $37 બિલિયન હતો. સો કોઈ એક કંપની 12 વર્ષમાં કોઈ બીજી કંપની જે 300 વર્ષ જૂની છે એના કરતાં કઈ રીતે 1.5 ગણું 2 ગણું એનું ટર્નઓવર રેવન્યુ થઈ શકે. સો ફંડામેન્ટલી આ જ ડિફરન્સ છે સ્ટાર્ટઅપ અને બિઝનેસ વચ્ચે. તમે બધા એન્જિનિયરિંગમાં એટલે 12th પાસ કર્યા પછી જ્યારે એન્જિનિયરિંગમાં આવો છો તો ઘણા બધા જોડે એટલે ખબર નહીં આમાં પોલિંગ સિસ્ટમ હોય છે કે નથી હોતી, પરંતુ એન્જિનિયરિંગ સિલેક્ટ કરવાની પાછળ ઘણા બધા કારણ હોય છે. એમાંથી એક કારણ હોય છે કે એન્જિનિયરિંગ પછી ફ્યુચર થોડું સિક્યોર છે એટલે એન્જિનિયરિંગ કરીએ. બીજું કારણ એવું હોય છે કે ભાઈ આજુબાજુ બધા એન્જિનિયરિંગ જ કરે છે ને તો આપણે બીજું બધું કરીએ અને એને કરતાં એન્જિનિયરિંગ કરી લઈએ જે બીજા બધાનું થશે એ આપણું થશે. ત્રીજું એક કારણ છે કે ઘરવાળાએ કીધું કે ભાઈ આપણે ઓલરેડી એન્જિનિયરિંગમાં બિઝનેસ છે કોઈ એક ડોમેનમાં અને અગર તું એન્જિનિયરિંગ કરી લો તો તું એ બિઝનેસ સાચવી શકીશ. ચોથું કારણ કે બીજું કંઈ નથી ગમતું એટલે એ ગ્રુપ લેવાઈ ગયું અને બીજું કંઈ એમાં શું કરીએ, BSc ફિઝિક્સ કરીએ, બીજું કંઈ કરીએ એના કરતાં એન્જિનિયરિંગ કરીએ તો કંઈ ફ્યુચરમાં કંઈ આગળ કરી શકીએ. અને પાંચમું કારણ કે લવ ફોર એન્જિનિયરિંગ. મને નથી ખબર તમે લોકો કયા કારણથી આવ્યા છો, બટ એન્જિનિયરિંગ સાથે જે લોકોના લવ મેરેજ થયા છે એ 5th જે કારણ છે એ બહુ જ ઓછા હોય છે. અને અગર એવા નથી તો હું તમને એવું એડવાઇસ કરું કે તમે શ્યોર તમે જેમ હવે LDRPમાં આવ્યા છો તો ધીરે ધીરે તમે જેમ એન્જિનિયરિંગ સાથે જોડાશો, એન્જિનિયરિંગ પ્રોસેસ સાથે જોડાશો અને અગર એમાં તમે ઇનોવેશન સાથે જોડાઓ તો તમને ઘણું બધું એન્જિનિયરિંગ ઉપર પ્રેમ આવશે. બાકી કેવું છે ખબર, એન્જિનિયરિંગ નોર્મલી જેમ
તમને 3 દિવસ અહીંયા આપણે વર્કશોપ રાખીએ, 3 દિવસમાં સવારે એટલે 3 દિવસ હું તમને મેનુ જમવાનું મેનુ કહી દઉં. વર્કશોપમાં લોકોને બાકી બધી ઈચ્છાઓ તો એટલે ભણવાની કેટલી હોય છે મને નથી ખબર, પણ જમવામાં શું છે એવું ઘણા એક્સપર્ટ્સે મને પૂછેલું છે. એટલે તમને એવું કહું કે 3 દિવસ જમવામાં સવારે ખીચડી અને વઘારે નહીં પણ સાદી દાળ અને ભાત વાળી, બપોરે ખીચડી, સાંજે ખીચડી, બીજા દિવસે પણ સવારે ખીચડી, બપોરે ખીચડી, સાંજે ખીચડી, ત્રીજા દિવસે પણ ખીચડી ખીચડી ખીચડી. આવું હોય ને અગર ચોથા દિવસે સવારે પણ નાસ્તામાં અગર હું ખીચડી આપું તો તમે શું એ વોમિટિંગ નહીં કરી છો? સો કોલેજ એજ્યુકેશન એક્ઝેક્ટલી સ્કૂલ એજ્યુકેશન જેવું નથી. 3 વર્ષ એટલે આ 12 વર્ષમાં 8 કલાક અને એટલીસ્ટ વર્ષમાં 200 દિવસ તમે અગર ભણ્યા હશો અને એ જે ભણ્યા છો એ બધું એટલે અગર તમે રિયલી એન્જિનિયરિંગ એન્જોય કરતો અને તમે સ્કૂલ એજ્યુકેશનને બેક પાછું કરીને જો તો તમને એવું લાગે કે અમે માત્ર સાદી ખીચડી જ ખાધી હતી, કંઈ એવું ઇન્ટરેસ્ટિંગ અમને કંઈ મળ્યું જ નથી એવું તમને હંમેશા લાગશે. સો બેઝિકલી એન્જિનિયરિંગ બહુ જ ક્રિએટિવ ડોમેન છે. એ જેવી સ્કૂલિંગ સિસ્ટમમાં તમે એટલે આ જેવી સ્કૂલિંગ સિસ્ટમમાંથી તમે આવ્યા છો અને હવે તમે એન્જિનિયરિંગમાં છો તો એના એટલે સ્કૂલિંગ સિસ્ટમમાં કેવું છે, પેલું એક ડ્રેસ હોય છે કલર કોડેડ અને મેક્સિમમ 2 કલરનો ડ્રેસ હોય છે, એમાંથી એક વ્હાઇટ હોય ને બીજો કલર અલગ અલગ સ્કૂલોનો અલગ અલગ હશે, એ તમને ખબર છે. પર એન્જિનિયરિંગમાં કપડામાં કેમ ડ્રેસ નથી હોતો? તો એનું મેઇન કારણ છે કે હવે થોટ્સમાં પણ કલર્સ હોવા જોઈએ અને કલર્સ ક્રિએટિવિટીનો નિશાની છે. So what exactly LDRP and KSU is doing, that we don't want you to again start with a system કે જ્યાં તમે એ સ્કૂલિંગ સિસ્ટમમાં તમે કોલેજ આવો કે સ્કૂલ આવો કોઈ ફરક ના પડે, તમે અહીંયા આવો, લેક્ચર ભરો, એક્ઝામ આપો, ડિગ્રી લોન જતા રહો. જે તમે સેમ સ્કૂલિંગ સિસ્ટમમાં કર્યું છે એ જ રીતે તમે એન્જિનિયરિંગમાં રિપીટ કરો, એવું LDRP કે KS યુનિવર્સિટીની બિલકુલ ઈચ્છા નથી. એટલે જ એમને અલગ અલગ રીતે તમારી ક્રિએટિવિટી સચવાય એના માટે અલગ અલગ સેલ, અલગ અલગ ઇવેન્ટ્સ, ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર્સ સ્ટાર્ટ કર્યા છે. કોલેજ લાઈફમાં જ્યારે એટલે હવે બધા એન્ટર થઈ ગયા છો ઓફિશિયલી, તમે હવે કોલેજ લાઈફમાં છો, ભલે ઓનલાઈન છો પણ ધીરે ધીરે જેમ જેમ તમે કેમ્પસમાં આવશો તેમ તેમ ખૂબ બધું એક્સાઇટિંગ ટેકનોલોજીકલ ઇન્ટરફેસ તમને મળશે. બહુ જ સારા પ્રોફેસર્સ છે જે અલગ અલગ વિષયોમાં તમને ગાઈડ કરશે. અને જે મારો પર્ટિક્યુલર વિષય છે કે વેર આઈ વોન્ટ યુ, એટલે હું તમારા લેક્ચર્સ લેવા કદી નહીં આવું, બટ મારો મેઇનલી જ્યારે યુનિવર્સિટી સાથે તમારું કામ આવશે કે તમે કોઈ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ કરવા માંગો છો. રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ એટલે અને એ તમે ફર્સ્ટ યરથી કરી શકો. ફર્સ્ટ યરથી તમે કોઈ પણ પ્રકારના રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ કરવા માંગો કે જે સબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ નથી, કે જે સબ્જેક્ટમાં એટલે પેલું શું કે જેમ પ્રોફેસર છે કોઈએ આપ્યો હોય તમને કોઈ હોમવર્ક અને એ હોમવર્ક કમ્પ્લીટ કરવા માટે તમારે કોઈ એક ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કરવો પડતો હોય, તો લાઈક that is a different part of the story. What kind of research project that I am telling is that is not curriculum based research. It is much more about extracurricular કે તમે એવું કંઈ વિચાર્યું છે. હા, એટલે હું સોરી અગર હું ગુજરાતીમાં વધારે બોલું છું કારણ કે ગુજરાતી જ એવી ભાષા છે કે જ્યાં જે દિલથી નીકળે તો જ મજા આવે. બાકી કેવું છે ઇંગ્લિશમાં તમને લેક્ચર આપી દઉં પર હું તમને ક્રિએટિવિટીની ભાષા ન કહી શકું કે કેવું છે કે અગર મારે કોઈને કંઈ સારું કેવું હતું અને બહુ જ ખરાબ ગાળ આપવી હોય, કંઈ ગાળ આપવા નથી પણ એ માતૃભાષામાં જ નીકળે. એટલે સર જેને ગુજરાતી ન ખબર પડતી હોય પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ, તો હું એને હિન્દી અથવા ઇંગ્લિશમાં પણ કન્ટિન્યુ કરી શકું. સો ઓકે, સો બેઝિકલી રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ જે કરિક્યુલમ બેઝ નથી, તમને એવો કોઈ વિચાર આવે છે કે મારે આ વિષય પર હું ઘણા સમયથી જોઉં છું કે ભાઈ આવું સમાજમાં જે રીતે ગાર્બેજ કલેક્ટ થાય છે અથવા જે રીતે ફ્રૂટ્સમાં લાઈક પોલ્યુશન એના જે FSSAI મેઝર્સ નથી થતા અથવા કોઈ પણ એવું એક સોશિયલ કોઝ તમને દેખાય છે અને એનો કોઈ ટેકનિકલ એપ્રોચ તમારા જોડે છે, અથવા જેમ ઘણા છોકરાએ અલગ અલગ પ્રકારના પ્રોજેક્ટ્સ કરેલા છે, જેમ ઘણા છોકરાએ કોઈ સોશિયલ કોઝ એવું ઉપાડ્યો હોય કે ભાઈ જેમ ગાંધીનગર વિસ્તાર છે
એમાં બહુ જ બધા લોકો સાયકલ ભંગારમાં આપી દે છે અને ઘણા લોકોની જરૂર હોય છે તો પણ સાયકલ એમને નથી મળતી. તો મારે એવું પોર્ટલ બનાવવું છે કે જેમાં લોકો પોતાની સાયકલ અપલોડ કરી શકે અને સામેવાળો એ એટલે એટલીસ્ટ રિઝનેબલ રેટમાં એ લઈ શકે, એટલીસ્ટ એ રિસોર્સનો વેસ્ટ ના થાય. પછી એક બે છોકરાએ સિટી રાઇડ બનાવી છે, ઘણા છોકરાઓએ ફાર્મિંગ માટે એપ બનાવી છે કે ભાઈ આજનું વેધર કેવું હશે એ રોજ સવારે, કારણ કે ખેડૂત રોજ પોતાનું વેધર એપ ખોલતો નથી એટલે એ લોકો એટલે ટેકનો સેવી નથી હોતા, પરંતુ એને વોટ્સએપમાં જ આજનું વાતાવરણ કેવું હશે એવું રોજ ઓટોમેટિક કઈ રીતે મોકલી શકાય એવી એપ એ છોકરાએ બનાવી છે. એટલે એવા અલગ અલગ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે તમારા ડોમેનના એટલે કરિક્યુલમમાં સાથે ડાયરેક્ટલી ન જોડાયા હોય પરંતુ એની સાથે એક સોશિયલ કોઝ છે, એની સાથે એક રિસર્ચ ઓરિએન્ટેડ એંગલ છે, તો શ્યોરલી યુ કેન એપ્રોચ મી, યુ કેન એપ્રોચ માય ડિપાર્ટમેન્ટ કે જ્યાં તમને આ પ્રકારના રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ્સ માટે ગ્રાન્ટ્સ મળશે. બીજું એક જે આપણે ફેસબુક અને આદિત્ય બિરલા ગ્રુપનું કમ્પેરિઝન કર્યું કે કઈ રીતે કોઈ કંપની આટલી મોટી તરત થઈ જાય. સો ધ ફંડામેન્ટલ આઈડિયા ઇઝ કે આપણે અગર સમાજની નસ ઓળખીએ અને આપણે બિઝનેસ આપણે કરવો છે એટલે નહીં, પરંતુ સમાજને જરૂર છે અને એને એટલે એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે કરીએ તો એ બહુ જ સારી રીતે સોસાયટી એક્સેપ્ટ કરે છે ને એનું શું કે સમાજમાં પ્રમોશન બહુ જ સારી રીતે થાય છે અને એ પર્ટિક્યુલર પ્રકારનું સ્ટાર્ટઅપ સોસાયટીમાં બહુ સારી એટલે સોશિયલ જે લેન્ડસ્કેપ આપણે બિઝનેસમાં જોઈએ છે એ એમાં બહુ સારું એનું રિઝલ્ટ હોય છે. તો જે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર શું કરે, તો તમે કોઈ આઈડિયા લઈને આવો તો એ આઈડિયા એટલો વેલિડ છે. કારણ કેવું છે કે આપણને કોઈ પણ આઈડિયા દિવસમાં આપણને 60,000 આઈડિયા આવે. નોર્મલી MIT રિસર્ચ છે જેમાં 6,000 થી 60,000 સુધીના આઈડિયા વ્યક્તિને એક દિવસમાં આવે, જાગતા ને ઊંઘતા બંને વખત. તો બધા જ આઈડિયા કે બિઝનેસમાં કન્વર્ટ ના થાય. થોડા ઘણા એવા આઈડિયા હોય જેના માટે તમને એવું લાગે કે મારે આ આઈડિયા પરસ્યુ કરવો છે, ને એ આઈડિયા પરસ્યુ કરવા માટે તમે જે મહેનત કરવા માંગો એ મહેનત અગર ઇનોવેશન સેલને દેખાય કે લાઈક યુ આર રિયલી ડેડિકેટેડ ટુ યોર આઈડિયા, યુ લવ યોર આઈડિયા એન્ડ યુ આર રેડી ટુ ગીવ યોર કમ્પ્લીટ એફર્ટ્સ to that particular idea, to make a success out of that idea, to make a company out of that idea, to make a venture out of that idea, then surely we are there to support you financially. 50,000 થી લઈને 2 લાખથી લઈને 20 લાખ સુધી ગ્રાન્ટ છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં બહુ વધારે ગ્રાન્ટ છે એ હું સ્વીકારું છું, કારણ કે એવું છે કે કોમ્પ્યુટર ડોમેઇનમાં જેટલા પણ સ્ટાર્ટઅપ છે એમાં જે પ્રોટોટાઇપિંગ કહેવાય, પ્રોટોટાઇપિંગ એટલે શું, તો જે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ હોય એ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ ન બનાવી હોય ને એના પહેલા સિર્ફ દેખાડવા માટે કે ભાઈ હું આવું કંઈ વિચારું છું, એનો આ 10-20% છે, અગર આ સાચું હોય તો પેલું 100% હોવાની સંભાવનાઓ છે. સો ટેકિંગ અ રિસ્ક ઓન ધેટ 20 લાખ સુધીની ગ્રાન્ટ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત સાથે SV ઇનોવેશન ફાઉન્ડેશન આપી શકે છે. એનું અત્યારે કોઓર્ડિનેશન આપણી LDRP સાથે, LDRP યુનિવર્સિટી, KSU યુનિવર્સિટી, એના અંડર MBA કોલેજ છે SK પટેલ મેનેજમેન્ટ સ્ટડીઝ, એમના પ્રોફેસર્સ એ અત્યારે પ્રોજેક્ટ લીડ કરી રહ્યા છે. તો એમાં બેઝિકલી 2 ગ્રાન્ટ છે, એટલે તમે લોકો નોટ કરી રાખો. તમને ગમે ત્યારે આઈડિયા આવે તો તમે પ્રોફેસર કૃપા મહેતા, શી ઇઝ ફ્રોમ MBA ફેકલ્ટી, એમને તમે એપ્રોચ કરી શકો. એક SSIP ગ્રાન્ટ છે, એ 2 લાખની ગ્રાન્ટ છે અને એમાં તમે ગમે ત્યારે ઇન બિટવીન ધ યર પણ તમે એપ્લાય કરી શકો. અને ICની જે ગ્રાન્ટ હોય છે, ઇન્ડસ્ટ્રી કમિશનની ગ્રાન્ટ, એ 20 લાખની હોય છે. એમાં થોડું વધારે મોટું પ્રોજેક્ટ હોવું જોઈએ જેમાં રિયલીમાં એ આઈડિયા બહુ જ સારો હોય તો એને 20 લાખ સુધીની ગ્રાન્ટ. અને આ પ્રોફિટ શેરિંગ ગ્રાન્ટ નથી. આ એકવાર તમે આના માટે એલિજિબલ થઈ જાઓ તો આ ગ્રાન્ટ ડાયરેક્ટલી તમને મળે ને એ ડાયરેક્ટલી તમારા જ એકાઉન્ટમાં આવે ને તમે એને યોગ્ય રીતે વાપરવાની ને તમારું બિઝનેસ તમે આગળ લઈ જઈ શકો. સો SV ઇનોવેશન ફાઉન્ડેશન, that is Section 8 company of SVKM Trust that is taking care of KSU University and under which LDRP is a college. તો આ બધું સંલગ્ન સંસ્થાઓ છે એટલે તમે એમાં એપ્લાય કરશો તો ઓફકોર્સ એઝ અ સ્ટુડન્ટ ઓફ LDRP
યુ આર ગોઈંગ ટુ ગેટ પ્લસ પોઈન્ટ કે ભાઈ કારણ કે અમે એલડીઆરપી સ્ટુડન્ટ્સને વધારે મોનિટર કરી શકીએ, વધારે સારી રીતે એમના સાથે મેન્ટરશિપ કામ કરી શકીએ. તો આના માટે હંમેશા અવર ડોર્સ આર ઓપન. તમે હવે એલડીઆરપી અને કેએસયુ ફેમિલીના પાર્ટ છો, સો તમે ગમે ત્યારે ઇનોવેશનના કોઈ પણ આઈડિયાને લઈને અહીંયા આવી શકો છો. બીજું જે એક પાર્ટ છે જે મારે અહીંયા દેખાડવાનું છે, okay, I hope my screen is visible. Yes, visible. Okay. So, Professor Rosalie Victor, જે આપણી કોલેજમાં લગભગ 5-6 મહિના સુધી પ્રોફેસર હતા અને અત્યારે 5 દિવસથી she is not connected with us. So she was taking care of this NPTEL online certification program. બહુ જ સારી તક છે સ્ટુડન્ટ્સ માટે. એટલે હું લકીલી મને NIT IIT માં ભણવા મળ્યું છે. તો એ પ્રોફેસર્સને વ્યક્તિગત ભણવાની જે મજા છે એ હું એવું માનું છું. આજ પણ મને ઓનલાઈન જ્યારે પણ મારા પ્રોફેસર્સ દેખાય તો મને what we were at share screen. Okay. So last अपने जो बात कर रहे थे, I think we were at NPTEL. So NPTEL, Professor Rosalie Victor was taking care, and today she is with us in the session. मैं मेरे से ज़्यादा वही बता सकते हैं, but of course this department comes under नाउ लाइक ये अब जो भी बच्चों को इसमें कुछ भी क्वेरी होगी वो मेरे साथ उनको डिस्कस करना है. तो मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ. NPTEL इज लाइक IIT एजुकेशन एट होम. IITs के जितने भी प्रोफेसर्स हैं और जो रिनोन प्रोफेसर्स हैं और जो रियली में बहुत अच्छी तरह डिलीवर कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को. तो जो सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वही सब्जेक्ट आप IIT के प्रोफेसर्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं. एंड लाइक दिस इज ड्रीम कम ट्रू कि ऐसा मीन्स हमारे टाइम पे ये सोचना भी बहुत टफ था कि ऐसा कभी हो सकता है. सो कभी भी IIT के प्रोफेसर्स हमारे वहाँ आते थे तो लाइक वी वेर के आज सुनने जाना है एंड द हॉल जो भी लाइक आई यूज्ड टू स्टडी इन DUM विद्यानगर. पूरा हॉल और हॉल में जो खिड़कियाँ होती है वो खिड़कियाँ में भी लोग बैठ के उनको सुनते थे. सो आई हैव सीन दैट फेज के उनके लेक्चर्स की क्या वैल्यू होती है. ऑफ कोर्स और ये NPTEL की वजह से बहुत इजी हो गया है कि हम उनको अपने स्क्रीन पे देख के उनके साथ वो IIT में जो कंटेंट पढ़ाते सेम कंटेंट. ऑफ कोर्स जो फ्रेंड सर्कल है उसका फर्क पड़ता है कि वहाँ पे जिस हिसाब से असाइनमेंट्स मिलते हैं और वहाँ पे जैसे IIT के प्रोफेसर्स दे आर नॉट ओनली इन टीचिंग, वो बहुत सारी जगह कंसल्टेंसी भी करते हैं. तो उनका टाइम लेक्चर्स को मिलना बहुत टफ होता है.
तो रात को कई बार 12 बजे भी लेक्चर्स बुलाते हैं, बट वो जो कंटेंट है वो हमेशा हमें अब अवेलेबल रहता है थैंक्स टू NPTEL. It's an project initiated by MHRD that is now has been converted to MOE, Ministry of Education. तो NPTEL क्या है? NPTEL ऑनलाइन सर्टिफिकेशन डोमेन है, पूरा एक बहुत बड़ा कोर्स मूक विकीपीडिया है, ऐसा बोले तो भी चले। उसमें इतने सारे NPTEL में ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, आप कहो वो डोमेन, और आप मीन्स लाइक मोर देन 300 सर्टिफिकेशन कोर्सेज, लाइक आप देख सकते हो इसमें कि एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्ट, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिजाइन, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट। अब आपने आज एक छोटी सी मीन्स में आपने एक क्विज जैसा भी खेलेंगे, वो इंजीनियरिंग डिजाइन, वैसे जो बच्चे इंजीनियरिंग में आते हैं उनको इंजीनियरिंग डिजाइन बहुत अच्छा नहीं लगता, पर वो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको इंजीनियरिंग में लगेगा। स्टार्टिंग में ऐसा कम मजा आएगा, पर टू बी ऑनेस्ट वो फ्यूचर में बहुत काम आता है। ऐसे सब्जेक्ट है जैसे मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, माइनिंग, मल्टी डिसिप्लिन, जितने भी सब्जेक्ट्स है जो मीन्स अकेला कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ऐसे जितने भी मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। और इसमें भी ज़्यादा स्पेसिफिक, You are muted. Utkarsh, can you hear me? Okay, I can hear you. Am I audible? Yes, right now audible. Okay. मैडम, मोस्टली बच्चे अभी आज इस सेशन में कंप्यूटर साइंस के हैं, ऐसा है क्या? हाँ, कंप्यूटर के हैं। अभी मॉर्निंग ये जो फर्स्ट सेशन है उसमें सिर्फ कंप्यूटर के बच्चे हैं। ओके, सो लेट मी शेयर मेरी स्क्रीन। इज माय स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन now I think it is visible. Yes, visible. ओके, सो NPTEL तो मैंने जो पहले NPTEL का पूरा दिखाया वो उसमें मैडम वो दिखाई दिया था स्क्रीन शेयरिंग में? हाँ, Hello? दिखा था, पहले दिखा था। हाँ, जो डिस्कनेक्ट हुए आप उससे पहले दिखा था और अभी भी दिख रहा है। ओके, ये वाले पेज में जो ऑनलाइन कोर्सेज थी वो हमने शायद डिस्कस किए, पर शायद तब मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी। बट ये शायद बाकी, ये स्क्रीन शेयर करना हो गया था मैडम, ये बाकी था ये वाला? बाकी था, बाकी। ओके, सो NPTEL की वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो ये सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। ये सारे कोर्सेज IITs, IIITs और आइसर के फैकल्टीज ने लिए हुए हैं। बहुत जेन्युइन कोर्सेस है। मोस्टली जितने 40 सब्जेक्ट्स मेरे ख्याल से आप जब इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं वो सबके करस्पॉन्डेंस कोर्सेस यहाँ से आपको मिल जाएंगे, करस्पॉन्डिंग कोर्सेस। आप जो भी डोमेन में हो वो डोमेन के हर एक कोर्स यहाँ पे मिलते हैं। जैसे आज कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो कंप्यूटर साइंस के ये सारे कोर्सेस आपको यहाँ पे
ये सारे कोर्सेस कंप्यूटर साइंस के हैं और जो आईआईटीज और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी पटना, आईआईटी गुवाहाटी, सब कोर्सेज अवेलेबल है। और ये 8 वीक्स मीन्स वो लोग सही में 8 वीक तक हफ्ते में 3 दिन 4 दिन पढ़ाते हैं और उसके असाइनमेंट्स भी वो लोग लेते हैं। इसके फायदे मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ क्या क्या फायदे हैं कि इस प्रकार के कोर्स क्यों करने चाहिए। तो अकेले कंप्यूटर साइंस में लाइक देयर आर 37 पेजेस, so like almost 100 to 150 courses अकेले computer science में, 366 entries, so there are 366 courses in computer related complete जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें 366 कोर्सेज है, उसमें से कंप्यूटर साइंस के 51 कोर्सेज हैं। तो ये आपको NPTEL से डायरेक्टली आप ये सीख सकते हैं। इसके LDRP उसका एक्टिव लोकल चैप्टर है, तो आपको उसका लोकल गाइडेंस चाहिए। जैसे ये आजकल तो ये प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले ज़माने में ये प्रॉब्लम होती थी कि भाई हमारे पास इंटरनेट नहीं है, तो 1 घंटे का वीडियो देखना है तो मुझे हफ्ते का इंटरनेट इकट्ठा करना पड़ता था। ये आज से 4 साल पहले का प्रॉब्लम था, आज का नहीं है। पर तब दर एक इंस्टीट्यूशन अगर लोकल चैप्टर है तो उसके मेन सर्वर पे NPTEL के वीडियोस अपलोडेड होते हैं और LDRP में वो अपलोडेड होते थे। अब पर ऑनलाइन रिसोर्सेज अब सबके पास है, तो सब लोग NPTEL के वीडियोस ऑनलाइन भी देख सकते हैं। एक ये है। अब NPTEL अब स्वयं के साथ मिल गया है। पहले वो इंडिपेंडेंट टेक्निकल बॉडी थी, पर जो स्वयं है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन इनिशिएटिव है। उसमें आप देख सकते हैं AICT, CEC सेंटर फॉर एजुकेशन कंटिन्यूएशन, IGNOU, IIM बेंगलोर, NCERT, NIOS, NITTR, NPTEL और UGC, ये सबके कोर्सेज आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसमें अच्छा क्या है और ये क्यों वैलिड, ये क्यों सही है, क्योंकि इसके शायद कोर्सेज आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, असाइनमेंट्स भी आप ऑनलाइन देंगे, पर इसकी जो एग्जाम्स होती है वो ऑफलाइन होती है और इसीलिए इसके सर्टिफिकेट की वैल्यू भी है। अगर कोर्स ऑनलाइन हो और उसका सर्टिफिकेशन भी ऑनलाइन, एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन हो, तो वो बहुत सही सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता, क्योंकि इंडस्ट्री वाले भी पहचान जाते हैं कि भाई ऑनलाइन में क्या क्या ऑप्शन स्टूडेंट्स रखते हैं एग्जाम पास करने। पर NPTEL की जितनी भी एग्जाम्स है सब आप पढ़ो ऑनलाइन, पढ़ने का, उससे एक्सप्लोर करने का, कोर्स को ऑडिट करने का कोई कॉस्ट नहीं है। परंतु अगर आपको उसकी एग्जाम देनी है तो एग्जाम देने के लिए 1000 रुपीज़ फीस है और वो सर्टिफिकेट बहुत वैलिड सर्टिफिकेट है। उस सर्टिफिकेट से जॉब से लेके, इंटर्नशिप से लेके प्लेसमेंट तक वो हर जगह आपको काम आता है। तो NPTEL में थोड़ा और अपने डीप में जाते हैं। तो NPTEL डोमेन सर्टिफिकेशन, लाइक दिस इज द न्यू फीचर, और इसमें अगर आप एनरोल होते हैं, ये क्या है एग्जैक्टली, तो जैसे वहां पे आपको दिखाया लाइक दैट वाज अ क्लस्टर ऑफ कोर्सेज, बट लाइक दे हैव क्वांटाइज्ड कोर्सेज फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन, जो अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि भाई उन्होंने ये बेसिकली 10 फील्ड उन्होंने सिलेक्ट किए, तो 10 फील्ड में भी सब उन्होंने स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी जैसा उन्होंने एक स्ट्रक्चर रखा है। और उसके अंदर जैसे अपने कंप्यूटर साइंस के आज स्टूडेंट्स हैं, तो ओके, सो इट इज हियर। कंप्यूटर साइंस में 5 स्पेशलिटी ऑप्शन है। अगर ये आप 5 कोर्सेस है, मीन्स अगर इन्होंने ये कोर्स आप करते हैं और इनके अंदर लगभग जो भी जैसे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में आजकल बहुत सब जगह बातें होती है और वही फ्यूचर है, ऐसा सब लोग कहते हैं, सब इंडस्ट्री वाले कहते हैं दैट AI इज अराइविंग, सो एंड AI हैज अराइव्ड, ऐसा भी कहते हैं। तो उसके लिए IITs और जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट इज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ऐसे जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स है वो सब मिलके एक कोर्स डिजाइन किया है। और ये कोर्स का फायदा क्या है कि ऐसा नहीं कि यही कोर्स लेना है,
जैसे आप देखेंगे इसमें कई बार और ऑप्शन है, इधर और ऑप्शन है, इधर और ऑप्शन है, इधर और, तो आप मशीन लर्निंग मीन्स आप ये सब्जेक्ट ले या ये सब्जेक्ट ले, आपको दोनों में ऑप्शन रहता है कि आप इस प्रोफेसर से सीखें, आईआईटी मद्रास के मितेश खापरा सर से सीखिए या आईआईटी खड़गपुर के प्रणब बिस्वा सर से सीखिए। डीप लर्निंग आप अपने हिसाब से सीख सकते हैं। नॉर्मली ये पूरा जो कोर्स होता है वो 60 वीक का होता है, तो इट इज अ 60 वीक प्रोग्राम। 3 साल में आपको कंप्लीट करना होता है। और अगर ये आप कंप्लीट करते हैं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर से इसको ज्वाइन किया और आप 3 साल में, तो आईआईटी में इंटर्नशिप की इसमें प्रावधान है। इफ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड विथ लाइक अबव 80 और 90% मार्क्स अगर इस कोर्स में, तो आपका जो फाइनल ईयर डिसर्टेशन है उसके लिए आईआईटी आपको वहां पे बुला सकता है। फ्यूचर रिसर्च इंटर्नशिप जो आईआईटी में बहुत सारे, सिर्फ आईआईटी में कैसे बीटेक एमटेक होता है ऐसा नहीं होता, आईआईटीज एनआईटीज में बीटेक एमटेक को छोड़ के बहुत कुछ होता है, बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट चलते हैं और जितने स्टूडेंट्स होते हैं उतने ही रिसर्च एसोसिएट कई बार वहाँ पे कई प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलते हैं डिपार्टमेंट्स में। तो आप वहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट की तरीके से भी कई इंस्टीट्यूट्स में आईआईटीज और एनआईटीज और नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप इंटर्नशिप ले सकते हैं। और एनपीटीईएल ने बहुत सारी इंडस्ट्रियों के साथ कोलैबोरेशन किया है। वो ये जो कोर सर्टिफिकेशन है, जैसे अपने कंप्यूटर साइंस में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखा, दूसरा जैसे डेटा साइंस है, प्रोग्रामिंग है, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग है और सिस्टम्स है। ये पांचों कोर्स जो है, अगर आप इसमें कोई भी एक करते हैं, 2 करते हैं, आप कुछ भी करिए और उसके कोर कोर्सेज अगर आप करते हैं तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री आपको हमेशा प्लेसमेंट के तरफ प्रेफरेंस देंगे। इसके एक कोर्स जैसे 60 वीक्स है और उसमें 4-5 कोर्स, अगर 6 कोर्स है तो एक कोर्स का अगर फीस 1000 रुपया है, क्योंकि पढ़ने का कोई पैसा नहीं है, परंतु जो एग्जाम है उसके अगर वो 1000 रुपीज, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर होता है एकदम। आप लोगों ने जैसे जेडब्ल्यू या नीट दी, नीट तो आपके में नहीं होगा पर जिन्होंने दी होगी, वो जो ऑनलाइन डोमेन में जो एग्जाम वैसे ही टीसीएस ही इसकी एग्जाम लेता है, वो लोग कंडक्ट करते हैं और उसका सर्टिफिकेट बहुत वैलिड होता है। तो आप अगर ऐसा कोई भी कोर्स करते हैं तो इनकी लगभग एनपीटीईएल वालों ने जो आईआईटी की जो प्लेसमेंट टीम है, उन वो जो कंपनीज को बुलाते हैं वही कंपनीज का पूरा लिस्ट उन्होंने एनपीटीईएल के साथ कोलैबोरेट किया है। और एनपीटीईएल के जो अच्छे परफॉर्मर्स है उनको आईआईटी इक्विवेलेंट प्लेसमेंट भी मिल सकता है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर साइंस में ये कोर सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा दिखते हैं, काम करते हैं, उसमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में जाते हैं, इंटर्नशिप्स आप लेते हैं और अगर वो बहुत अच्छी तरह आईआईटी प्रोफेसर के साथ सेट होते हैं तो आप उसमें आगे जाके आईआईटी के साथ मास्टर्स भी कर सकते हैं। मास्टर्स पीएचडी का कंबाइंड प्रोग्राम आता है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी स्कोप दैट गेट्स ओपन वंस यू हैव डन एनपीटीईएल कोर्स। तो जितने भी कोर्सेज है, आप इसमें से जैसे आप कंप्यूटर साइंस के बाकी आपको भी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है, जैसे मैं आपको जैसे पर्टिकुलरली मैंने अपने पीएचडी की एग्जाम कंप्यूटर साइंस में से क्लियर की थी। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा हूँ और मैंने कंप्यूटर साइंस की एग्जाम कैसे क्लियर की, तो जस्ट बिकॉज ऑफ एनपीटीईएल। कि मैं ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो मैं अपने करिकुलम में कभी नहीं पढ़ा, जब मैं बीटेक एमटेक पीएचडी ज्वाइन करना चाहता तब तक मैं जो नहीं पढ़ा था वो मुझे आईआईटी के प्रोफेसर से यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। तो मुझे इलेक्ट्रिकल में कुछ जानना है तो इलेक्ट्रिकल क्लास में तो जाके बैठ नहीं सकते, क्योंकि साथ में क्लासेस होती है अपनी। पर एनपीटीईएल में जब आप आते हो तो आप कोई भी सब्जेक्ट के, कोई भी डिसिप्लिन के लेक्चर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके पर्टिकुलर कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इंटरडिसिप्लिनरी इज द नेक्स्ट फ्यूचर। अकेला कंप्यूटर साइंस बहुत में उसका एक रेंज होता है, पर जब आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में घुसते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स में आप काम करते हैं तो वो अनलिमिटेड स्कोप के साथ काम कर सकते हैं। So this was about NPTEL subjects. तो इसका जब भी ये खुलेगा, अब अभी इसकी दिसंबर में एग्जाम है, तो वो एग्जाम खत्म होने के बाद वो लोग वापस जनवरी में कुछ नए कोर्सेज खोलते हैं। लगभग 250 कोर्सेज में आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। अगर आप कोर्स नहीं ले रहे तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप कोर्सेज की जगह अगर ये डोमेन सर्टिफिकेशन का भी कोई भी एक अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके करियर के लिए बहुत सही चीज।
क्योंकि इसका जो सर्टिफिकेट आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एनपीटीईएल स्वयं का सर्टिफिकेट आता है और वो इंडस्ट्री में अब रिकॉग्नाइजेबल है कि आपने अपने लर्निंग जो इंस्टीट्यूट के साथ आप पढ़ रहे उसके साथ आपने अपना लर्निंग एंडेवर चालू रखा। और इंडस्ट्री वाले भी इस प्रकार के बच्चों को में से इस प्रकार के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना उनको अच्छा लगता है, बिकॉज आपने अपनी कॉलेज लाइफ में जब आप पढ़ रहे थे तब लर्निंग के लिए आपने अपने दूसरे रिसोर्सेज भी खुले रखे एंड दिस शोज योर ओपननेस टुवर्ड द नॉलेज सिस्टम। सो एनपीटीईएल आप जरूर कोई भी सब्जेक्ट जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो भी आप ले सकते हैं, अथवा और उसके साथ अगर आप लेते हैं तो आप अपने जो टीचिंग रिसोर्स है, टीचिंग मेंटर है, जो आपके भी प्रोफेसर होंगे, उनको आप वहाँ पे एज ए गाइड सिलेक्ट कर सकते हैं। और वो आपको एनपीटीईएल कोर्स में कुछ न समझ आए तो भी वो लोग आपको इंडिविजुअली मेंटरशिप कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि भाई एनपीटीईएल कर रहा हूँ कहीं पे स्टक हुआ यार ये समझ नहीं है तो कहाँ जाऊँगा। तो ऑफकोर्स आप अपने प्रोफेसर्स जो है एलडीआरपी में है वहाँ पे आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नाम वहाँ पे आप एनपीटीईएल पे भी लाइक इफ द प्रोफेसर अप्लाइज वो मेंटर में भी आपको आप सिलेक्ट करेंगे तो उनका नाम मेंटर में आएगा। और आप असाइनमेंट में कहीं पे रुके तो उनको दिखाई भी देगा कि यहाँ पे आप रुक रहे हैं तो लाइक दे विल टेक इनिशिएटिव एंड दे विल श्योरली अप्रोच यू कि भाई इससे थोड़ा आगे बढ़ो, इससे अब ये करोगे तो आगे बढ़ोगे। ऐसा करके एनपीटीईएल पूरा बहुत सही तरीके से इसमें और इंटरेस्टिंगली कई रिसोर्सेस ऐसे अभी पिछले साल एनपीटीईएल में 2.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दी और टोटल वो लोग अब अभी कुछ 35 लाख स्टूडेंट्स वो लोग क्रॉस कर चुके हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्जाम दिए और उनके सर्टिफिकेट काफ़ी हद तक रिकॉग्नाइजेबल है। इसलिए और कई स्टूडेंट्स हैं तो 30 अपने बैचलर्स बी जब आपका खत्म होगा तब तक उसने 30 सब्जेक्ट्स में एग्जाम देते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। कई लोग तो बैचलर्स खत्म होने के बाद जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो नया नया आईआईटी प्रोफेसर से सीखने के लिए, दूसरे डोमेन का सीखने के लिए कई इंडस्ट्री वाले लोग हैं जो चालू जॉब में, किसी पढ़ाई की बात नहीं है, दिस इज अबाउट एडवांसिंग योरसेल्फ। सो वो लोग वहां पे जाके भी एनपीटीईएल के बहुत सारे कोर्सेस लेते हैं। सो यही चीज आप कहीं और भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दूसरे ऑनलाइन रिसोर्स प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ जो बहुत अच्छे हैं। उसके फाउंडर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूएस है, उसमें जो इंडियन ओरिजिन के अनंत अग्रवाल है उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो EDX करके जगह edx.org, ये मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज में से तो ऑफकोर्स ज्ञान मिलेगा, प्रोफेसर से आप व्यक्तिगत बहुत कुछ डिस्कस करोगे और आप जब ज़्यादा कुछ जानते हो तो प्रोफेसर के साथ भी अच्छी तरह आप डिस्कस करके कोई एक सब्जेक्ट में ज़्यादा एक्सपर्टाइज ले सकते हो। तो अगर आप देखें जो EDX है उसके मेंबर्स कौन कौन है, तो MIT है, हार्वर्ड है, बर्कले है, टेक्सास है, HN मीन्स ये स्विट्जरलैंड यूनिवर्सिटी, नेदरलैंड का डेल्फ्ट है, बॉस्टन है, जॉर्ज टाउन है, क्वींसलैंड। मीन्स these are one of the best universities that they are leading in technology and other domains. So ये सारी जैसे कैलटेक है, ब्राउन यूनिवर्सिटी है, बर्कली है, ये सारी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेस यहाँ पे है। लकीली अब इसमें IIM और जैसे स्टैनफोर्ड है, स्टैनफोर्ड का पूरा MIT म्यूनचेन, लाइक दिस इज जर्मनी बेस्ड यूनिवर्सिटी, ये सिंगापुर की NUS है। ये सारी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है जहाँ से आप कोर्सेस ले सकते हैं और कॉलेज के साथ साथ बहुत सारी जगह पे आप ज्ञान लेने के अपने रास्ते बंद न करके उसे खोल सकते हैं। तो MIT कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अब अभी कोर्सेज दे रहा है, तो ये उसकी लिस्ट है। ये सारे सब्जेक्ट में MIT कोर्स देता है। इसको ऑडिट करने का कोई चार्ज नहीं, और ऑडिट में इसे एक्सप्लोर करने का कोई चार्ज नहीं होता। पर अगर इसमें से सर्टिफिकेशन लेना है तो ये लगभग 5 से 10 हज़ार का कुछ कॉस्टिंग होता है। तो इसमें से भी सर्टिफिकेशन वो लोग देते हैं, इसकी एग्जाम ऑनलाइन होती है। एंड ऑफ कोर्स इसीलिए उसका थोड़ा लोगों को, जब भी इंडस्ट्री वाले होते हैं
वो थोड़ा उसमें रहते। परंतु अगर आप इसके कंप्यूटर साइंस लाइक आई सिलेक्ट फॉर यू, अगर अपने कंप्यूटर साइंस आज देखते हैं तो कितने टॉपिक्स पे उनके पास लेक्चर्स है। लाइक यू कैन सी .NET है, एल्गोरिथम्स है, AWS है, एंड्रॉइड है, एंगुलर है, Apache, app development, name a domain and they have a lecture for it. And from the basic best university that you can think around the on the earth, और बेस्ट प्रोफेसर्स लाइक IIT बॉम्बे के भी यहाँ पे कोर्सेज है जो प्रोग्राम बिजनेस। IIT बॉम्बे और IIMs भी अब इसमें ज्वाइंट हो गई है, बट इनके कोर्सेज थोड़ी महंगे होते हैं। लाइक आई वुड एडवाइस, अगर आप लोग CS के हैं तो CS50 इज द कोर्स जो पूरे वर्ल्ड के जितने भी मैंने कंप्यूटर साइंटिस्ट देखे, उन्होंने बेसिकली ये कोर्स वो लोग ऑनलाइन लेते ही हैं। तो CS50 एक बार आप पढ़ोगे तो आपको, मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ, आपको MOOC का रियल में टेस्ट चाहिए, व्हाट अ MOOC कैन डू इन योर लाइफ, प्लीज कंप्लीट अ CS50 कोर्स, because the level of education that they deliver at Harvard is what we even can get at home from the same professors that is teaching CS50 in Harvard. So this is like ये सारे कोर्सेज आप जब भी फ्री बैठे तो दूसरे 2-3 ऑप्शंस भी है, जैसे कोर्सेरा है। तो पर ये सारे पेड है और ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज में से नहीं है, परंतु जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स है वो लोग इसमें ज़्यादा कोर्स रखते हैं। फिर यूडेमी है, यहाँ से भी आप कोर्सेस ले सकते हैं। So basically now I am looking after this online preparation of yours, and basically we are emphasizing NPTEL, नॉट बिकॉज कि भाई हमें NPTEL ही करवाना, ऐसा नहीं है, परंतु NPTEL में जो IIT के प्रोफेसर्स है वो बहुत सही तरीके, मैंने दोनों में से कोर्सेज किए और मैं आपको कह सकता हूँ IIT के बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स है, बहुत सही तरीके से, कई बार बाहर की यूनिवर्सिटी से भी अच्छा यहाँ पे कंटेंट उनके पास होता है, और उसकी एग्ज़ाम ऑफलाइन होती है, इसलिए उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। तो ये कोर्सेरा है, इसमें भी आप कभी एक्सप्लोर कीजिए, ये यूडेमी है उसको भी एक्सप्लोर कीजिए, या यहाँ पे भी जो भी आप यहाँ सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं वो सब यहाँ पे है, अवेलेबल है। पाइथन है, AWS, अमेजन वेब सर्विसेज, सबके यहाँ पे कोर्सेस है। आप ये भी एक बार एक्सप्लोर कीजिए। अब जो लास्ट चीज़ है कि मुझे आपसे, नॉर्मली मुझे ऑनलाइन सेशन बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, पर आप अब नेक्स्ट वीक आने वाले तब अपने वापस किसी सेशन में मिलेंगे, परंतु एक छोटी सी गेम अपने खेलते हैं। मेरे ख्याल से मेरे पास 10 मिनट जैसा है। ओके, सो अब आपको, आप लोग वहाँ मीन्स ए ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको मैथ्स, फिजिक्स, ये सब अच्छी तरह आपको पता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा कि आपको ऐसा एक 3D ऑब्जेक्ट का नाम मुझे बताना है जिसको मैं एक रेक्टेंगल और एक होल, सर्कुलर होल, उसमें से पास कर सकता हूँ, और शर्त ये है कि वो 3D ऑब्जेक्ट जब रेक्टेंगल में से पास होता है तब इसके सारे बॉर्डर्स, और जब होल में से पास होता है तब इसके सारे बॉर्डर्स, ये उसमें से जब भी पास होता है तो इट शुड टच every like each and every point of the circumference। ऐसा कौन सा 3D ऑब्जेक्ट है जो रेक्टेंगल में से पास हो तो भी वो हर एक क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को टच हो, और सर्कल में से पास हो तो भी उस हर एक पॉइंट में से पास हो, हमें हर एक सर्कमफ्रेंस के पॉइंट से टच हो। ऐसा कौन सा 3D ऑब्जेक्ट है?
एनी गेस? बहुत इजी सवाल है। इसके बाद जो पूछने वाला वो वाला थोड़ा टफ है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये चार्जर है। अब ये जब मैं रेक्टेंगल में से पास करूंगा, अगर मैं इसे रेक्टेंगल में से पास करता हूं तो ये रेक्टेंगल में से बहुत अच्छी तरह से पास हो जाता है। पर जब मैं सर्कल में से पास करूंगा तो इसके ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड ये पॉइंट को टच नहीं होते, सिर्फ 4 ही पॉइंट टच होते हैं। तो ऐसा कौन सा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मुझे नाम दीजिए जो एक सर्कल में से पास हो तब भी उसके सारे उसके पॉइंट्स टच हो पाए, और एक रेक्टेंगल में से पास हो तब भी वो सारे पॉइंट टच हो पाए। आप कितनी अच्छी तरह इमेजिन कर सकते हैं, बिकॉज लाइक इंजीनियरिंग इज अबाउट इमेजिनेशन। क्योंकि आप कितनी अच्छी तरह इमेजिन कर पाएंगे वही मेरे लिए क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, और वो अगर ये सॉल्व होता है तो आगे बढ़ेंगे। आपको समझ आया क्वेश्चन कि मुझे वापस They are writing, excuse me, sir, they are writing in chat box, and if you want them, then they can unmute to answer. Yeah, They of can course also unmute themselves and they can answer. unmute. Yeah. So students, to answer, you can unmute yourself and then you have to mute. Right now they are responding and writing answers in chat box, sir. Okay, okay. हाँ तन्मय बोलिए। तन्मय ने हाथ खड़ा किया था। तन्मय यू कैन आंसर। लेकिन मुझे चैट कैसे दिखता है? Okay. Students, feel free, you can unmute yourself and you can reply. You are allowed to unmute yourself. आप लोग अपने आप को unmute कीजिए, one by one unmute करके आप आंसर कर सकते हैं। आंसर देने के बाद वापस म्यूट कर दीजिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, बट अभी अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। Okay, now I can see even the chat. अगर किसी को अनम्यूट करके जवाब देना है तो वो पहले दे सकते हैं, बाकी अब मैं चैट देख सकता हूँ। कई लोगों ने स्पॉन्ज कहा है, पिरामिड कहा है। स्पॉन्ज इज नॉट, स्पॉन्ज भी कौन से शेप में होगा? स्पॉन्ज इज अ मटेरियल नेम, लाइक इट्स नॉट अ शेप। पिरामिड शेप है, ऑफ कोर्स। सिलेंडर आंसर में है, पिरामिड आंसर में है, स्फीयर है आंसर में। भाई स्फीयर रेक्टेंगल में से कैसे जाएगा? रेक्टेंगल के जो ये वाले पॉइंट्स है, ये और ये वाला पॉइंट, उसको स्फीयर कैसे टच कर पाएगा? जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उसके। स्पॉन्ज, स्फीयर, ओके। स्पॉन्ज स्फीयर में तो भी हमेशा ये जो रेक्टेंगल पॉइंट, सर्कल में प्रॉब्लम नहीं आएगा, रेक्टेंगल वाले पॉइंट में प्रॉब्लम आएगा। हेक्सागोनल, सिलेंडर, ओके। सो यहाँ से मैं डेयरी मिल्क फेंक तो नहीं सकता हूँ, पर जो लोगों ने सिलेंडर आंसर दिया है वो उनका राइट आंसर है। बिकॉज सिलेंडर को अगर वर्टिकली, जैसे मैं एक पेपर में से सिलेंडर बनाता हूँ, तो आई हैव अ पेपर विथ मी। अगर मैं इसे सिलेंडर बनाता हूँ, तो नाउ दिस इज अ सिलेंडर। अगर मैं इसे ऐसे मूव करता हूँ तो लाइक दिस परफेक्ट मीन्स, ये ऑफकोर्स ये आइडियल नहीं है, पर आप सोचो मेरे पास एक आइडियल सिलेंडर है और एक आइडियल सर्कल। तो ऑफकोर्स एक सिलेंडर फ्रॉम टॉप सरफेस इट कैन मूव थ्रू अ सर्कल, एंड सिलेंडर फ्रॉम द साइड व्यू में से ये एक रेक्टेंगल में से पास हो सकता है। सो सिलेंडर इज द राइट आंसर। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने आपको दो चीजें दी थी, एक सर्कल था और एक रेक्टेंगल था। एक रेक्टेंगल था, एक सर्कल था। अब मैं एक और आपको बोल रहा हूँ, एक ऐसा मुझे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आप बताइए, उसका नाम थोड़ा मैथमेटिकल ज़्यादा है, तो वो बहुत मैथमेटिक्स में आप ना हो तो लाइक तो वो ऑब्जेक्ट का नाम नहीं पता होगा, परंतु
आप मुझे उसका आइडिया दे सकते हो और इसके लिए आपको अनम्यूट करना ही होगा और लाइक आई एम वेरी फ्री अबाउट इट, आप कुछ भी कह सकते हो एंड एवरी आइडिया इज ऑलवेज ऑसम। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये आइडिया सही है ये आइडिया गलत है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल, रेक्टेंगल एंड नाउ इट इज ट्राइंगल। एक ऐसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो सर्कल में से भी पास होता है, रेक्टेंगल में से भी पास हो और ट्राइंगल में से पास हो, और तीनों में से जब वो पास हो तो उसका हर एक पॉइंट वो टच होना चाहिए। तो ऐसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? अगर आपके पास कोई भी क्ले हो, अगर आपके पास घर में कोई भी फ्रूट हो, कोई भी वेजिटेबल जैसे लौकी हो, गुजरातीમાં કહીએ તો દૂધી હોય, તો તમે એના પર પણ એક્સપેરિમેન્ટ કરી શકો કારણ કે દૂધી બહુ સારી સિલિન્ડ્રિકલ ઓબ્જેક્ટ છે એટલે સિલિન્ડર પાસ થઈ ગયું છે બેમાંથી, એટલે सर्कल में से भी पास हो गया और रेक्टेंगल में से पास हो गया। सो सिलेंडर में से ऐसा कुछ बनाना है कि वो ट्राइंगल में से भी पास हो, तो ऐसा कैसे बन सकता है? कौन तो रेक्टेंगल में से कैसे पास होगा भाई? सोचिए, लाइक दिस इज इंजीनियरिंग। अगर आपके घर में सही में वेजिटेबल है तो आप नाइफ लेके आइए, वेजिटेबल को सामने रखिए, उसको ऐसे काटिए कि वो सही में कहीं से ट्रायंगुलर प्रिज्म थोड़े पास में हो पर काफी दूर हो। क्यूब भाई सर्कल में से कैसे पास होता है? सिलेंडर ट्रायंगल में से पास हो सकता है परंतु उसका सरकमफ्रेंस में से आप कैसे ये पॉइंट्स को कैसे जस्टिफाई करेंगे? हेक्सागोनल सिलेंडर, भाई सिलेंडर हेक्सागोन हो गया तो मुझे ट्रायंगल थोड़ी ना चाहिए, फिर तो मुझे हेक्सागोन डालना पड़ेगा। मैंने ट्रायंगल पूछा। चलिए, यही इंजीनियरिंग है। आप 4 साल में ये ढूंढ पाए कि भाई ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो रेक्टेंगल में से, सर्कल में से और ट्रायंगल तीनों में से पास हो सकता है। और सही में अगर आप कितने क्यूरियस है वो लाइक आप मैं मिस आपका कुछ कॉलेज ग्रुप होगा तो उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, और वो अगर मैडम मुझे भेजे तो मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि किसी ने रियल में ट्राई किया और इमेजिन करने का at least he or she gave an attempt कि ऐसा कुछ तो ऑब्जेक्ट अपने ढूंढे कि जो रियली में ये तीनों में से पास हो। प्रिज्म नहीं होगा भाई, प्रिज्म सर्कल में से पास कैसे होगा वो मुझे बताओ। प्रिज्म का जो नीचे होता है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है? स्क्वायर होता है 99%, और सर्कुलर कैसे हो सकता है? ओके, यू कैन राइट माई मिस, मेरा नंबर आप लिख भी लोगे तो भी मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है तो आप मुझे भेजो किसमें। इससे अच्छा मेरा ईमेल आईडी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपका आंसर आ जाए, आप कुछ भी ऐसा बना दो तो मुझे श्योरली आप मेल करना। आई विल लव टू सी कि आप सही में कितना क्रिएटिव सोच सकते हैं। ये सब कुछ विकसित, यू कैन विकसित या हेलो, हाँ बोलो विकसित। यस सर। आर्यन या विकसित दो में से जो भी पहले बोलना चाहते हैं वो बोलिए। आर्यन आप बोल दीजिए, विकसित ने म्यूट कर दिया। सर, एक ऐसा ऑब्जेक्ट अगर हम क्ले से या फिर किसी से बनाते हैं, उसका जो बेस हो वो सर्कल हो, और ऊपर से उसे अगर देखा जाए तो पहले तो उसे सिलेंडर बना दीजिए, फिर बाद में ऊपर वाले भाग से ऐसे एक साइड से ऊपर कट कर दीजिए और दूसरी साइड से, मतलब कि ट्रायंगल पिरामिड टाइप का 3 साइड वाला नहीं, सिर्फ 2 साइड, ऐसे कि धार नहीं बनाते,
उस तरह से बना दिया जाए। और फिर बाद में आइडिया अगर बहुत अच्छा है। हाँ। आप घर में आपके पास जो भी वेजिटेबल है, सबसे अच्छा वेजिटेबल जो जिसे हम दूधी कहते हैं, लोग उसे एकदम बोरिंग वेजिटेबल कहते हैं, पर वो आयुर्वेदिक वैल्यू भी बहुत है उसका। उसका एक बार आप थोड़ा कट बट कीजिए और फिर उसका सूप पी लेना। तो आप उसका फोटो मुझे भेजिए, मैंने अपना ईमेल आईडी रखा है वहाँ पे, आप मुझे उस पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई आइडिया है तो भी आप मुझे utkarsh@ksv.ac.in, तो भी मैं कहाँ पे मिलूंगा? तो LDRP कैंपस में जो आप जहाँ पे पढ़ते हैं, जो आपका एजुकेशन ब्लॉक है, उसके पास में यूनिवर्सिटी ब्लॉक है। यूनिवर्सिटी ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पे इनोवेशन ऑफिस है, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मेरी ऑफिस है। तो आप जब भी आप फिजिकली आएंगे यहाँ पे फिर अपने मिलेंगे, पर आप मुझे ईमेल कीजिए। जो चीज़ आपने बनाई है ना, वो चीज़ को आप ईमेल करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपके हाथ भी चलते हैं। अभी तक कैसा है कि हमने पेन बहुत चलाई है एग्जाम पास करने के लिए, थोड़ा हाथ से सब यूज कीजिए और कुछ अच्छा फोटो भेजिए। और कोई आंसर देना चाहता है? मेरी ईमेल आईडी मैंने लिखी है, फिर से मैं एक बार लिख ले रहा हूँ। KSV is the University Kadi Sarva Vishwavidyalaya.ac.in. Okay. Thank you, Professor Rosalie, Professor Shweta मैम, पायल मैम, कि मुझे लेक्चर के लिए इनवाइट किया। एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कि टेक्नोलॉजी थोड़ा कई बार अच्छी तरह बिहेव नहीं करती, और उसमें शेयरिंग तो मेरे साथ कभी अच्छा बिहेव नहीं होता, पर तो जो बात मुझे कहनी है मैं कह पाया हूँ। थैंक यू मैम। Can you repeat your email ID? Sorry. मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, स्टिल आई विल रिपीट, उत्कर्ष UTKARSH @KSV कड़ी सर्व विश्वविद्यालय KSV.ac.in, AC for academic, AC.in, in for India. So thank you, Mr. Utkarsh, for delivering such informative, insightful, and very interesting session and